Hello, my dear viewers. I am Anwar Hussain Barbia. Welcome you to your channel AHB Physics. We are studying alternating current. So this will be the fifth lecture on alternating current. We have already studied what is alternating current, what is alternating voltage, then mean value of current, RMS value of current, relation between mean value and peak value. Then we have studied the relation between RMS value and peak value. Then we have studied AC voltage applied to resistor. Then we have studied AC voltage applied to inductor, and after that we have studied AC voltage applied to capacitor. Now in this lecture we will study about the phasor diagram. So this concept is very new to you. So try to understand every content in it. Okay? So this is your fifth lecture in alternating current. So we are going to study phasor diagram. So first you have to understand what is a phasor. What is phasor? So the voltage and, or you can say the relationship between voltage and current. The relationship between, so more precisely we can say it as the phase relationship between the voltage and current. The phase relationship between the voltage and current, between the voltage and current are represented in terms of the phase relationship between the voltage and current are represented in terms of rotating vectors called phasors. So we call them as phasors. Now see, by definition आपको क्या समझ में है? What are phasors? The phase relationship between the voltage and current are represented in terms of rotating vectors called phasors. Now what is rotating vector? So यहाँ पे ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का मतलब जो हम वेक्टर पढ़ते हैं वो वेक्टर नहीं है. हम जो वेक्टर पढ़ते हैं वो क्या है? The physical quantities which has magnitude along with direction are called vectors. Now here it is rotating vector. So what is the concept of rotating vector? Now we know the representation of an AC voltage or AC current as, how we represent? Say this is an alternating voltage. Say this is an alternating voltage waveform. बहुत ज़्यादा शार्प हो गया? Yes. Say this is an alternating voltage. See, though both weights must be equal. Positive half cycle must be equal to the negative half cycle. Say this is an alternating voltage. This alternating voltage we are representing it as V. So this is what? This is our voltage waveform, and this curve will give us the instantaneous voltage. What is instantaneous voltage? Instantaneous voltage is given as V equal to Vm sine omega t, will give us the instantaneous voltage. Now we are representing this voltage in terms of omega t. So here we have omega t versus V. That is, we are representing the waveform of voltage with respect to omega t. So what is this omega t? We know that theta. What is angular displacement? What is angular velocity? Angular velocity is given as omega and it is given as theta by t. So what is theta? Theta is equal to omega t. That means angular displacement we are representing in terms of angular frequency. So this is our omega t. That means this is angle. So if you change the angle with respect to time के साथ अगर हम लोग चेंज करेंगे एंगल को, तो हमारा जो वोल्टेज है वो वोल्टेज क्या होता है? चेंज होता है. तो इसीलिए इस वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बोलते हैं, और इस वेवफॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वेवफॉर्म बोलेंगे. ना ये जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज का जो पीक वैल्यू है, सो व्हाट इज द पीक वैल्यू? दिस इज द पीक वैल्यू. So what is the peak value representation? The peak value of applied voltage is represented as Vm. So we represent it as Vm. Now take a line. इसके साथ सीधा करके एक लाइन आपको लेना है. ये मैंने एक सीधा लाइन लिया है, ठीक है. यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या करना है? रोटेटिंग वेक्टर को ड्रॉ करना है. तो इसका पीक वोल्टेज कितना है? इतना है इसका पीक वोल्टेज. तो पीक वैल्यू कितना है? ये है इसका पीक वैल्यू, है कि नहीं है?
तो इतना रेडियस लेके आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो इतना रेडियस लेके आप एक सर्कल को ड्रॉ कीजिए, से दिस इज अ सर्कल, ठीक है। नाउ अगर मैं बोलता हूं मेरे पास एक रोटेटिंग फेजर, रोटेटिंग एक लाइन है, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक लाइन है, इस लाइन को अगर मैं रोटेट करता हूँ, ये हो गया इसका इनिशियल पोजीशन, इसको अगर मैं इसे रोटेट करता हूँ, रोटेट करके कहाँ पे लेके आएंगे, मान लीजिए यहाँ तक लेके आएंगे। सो यहाँ पे कुछ एंगल को मैंने रोटेट किया, ये क्या है, ये एक एंगल है, इस एंगल को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ थीटा से। Say this theta is equal to omega t1 है, means for a particular time, say that time is t1, so theta को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा t। अगर टाइम t1 है तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा ओमेगा t1, इज इट। नाउ ये जो ओमेगा t1 है, ये मेरा हो गया रोटेटिंग फेजर। ये इनिशियल पोजीशन में कितना होता है, इनिशियल पोजीशन का मतलब थीटा कितना है, 0 है। अगर थीटा 0 है तो मेरा वोल्टेज कितना है, वोल्टेज इज v इक्वल टू vm sin ओमेगा t है। तो इसका मतलब ओमेगा टी का वैल्यू अगर 0 होगा तो मेरा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितना होगा, 0 होगा। तो आप देखिए इनिशियली आपका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितना है, 0 है। अब यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू है π/2। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है, पाई है। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू है 3π/2 और यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है, 2π है। और ये थीटा का वैल्यू कितना है, 0 है। तो 0 पे आपका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब यहाँ पे आपका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज 0 है। यहाँ पे जब जाएंगे कुछ एक एंगल हमने रोटेट किया, तो एंगल रोटेट करेंगे तो हमारा करंट सॉरी वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा, ये होगा वोल्टेज का वैल्यू। सो दिस वैल्यू विल बी द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा, व्हाट विल बी द एंगल इज ओमेगा t1। एंगल क्या है, ओमेगा t1 है, दिस इज द एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे तो हमारा क्या होगा, ओमेगा t1 चेंज होगा, चेंज होगा, चेंज होगा। तो ओमेगा t1 चेंज होने की वजह से, दैट मींस और थीटा चेंज होने की वजह से इंस्टेंटेनियस वोल्टेज भी चेंज होता है। तो अगर हम बोलेंगे ये रोटेटिंग वेक्टर को अगर मैं घुमा के यहाँ पे लेके आता हूँ, अगर ये पोजीशन में आएगा, इस पोजीशन में थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू है 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री होगा तो v कितना हो जाएगा, vm sin 90। व्हाट इज sin 90, sin 90 का वैल्यू 1 है, इसका मतलब हमें vm मिलेगा। सो वोल्टेज कितना हो जाएगा, vm हो जाएगा। इस पोजीशन में इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितना होता है, Vm है। इधर देखिए आपका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, सो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज Vm है। यह रोटेटिंग वेक्टर घूम के मान लीजिए यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे आएगा तो इसका वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा, ये होगा। फिर घूम के यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे आने के बाद थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180। थीटा 180, इसका मतलब sin 180 कितना है, 0 है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको 0 मिलेगा, इसलिए 180 में आपको कितना मिलता है, 0 मिलता है। फिर ये घूमेगा, यहाँ पे आएगा, मान लीजिए यहाँ पे आएगा तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सा होगा, ये होगा। मान लीजिए यहाँ पे आता है रोटेटिंग वेक्टर, तो इसका करस्पॉन्डिंग, ये मान लीजिए आपका रोटेटिंग वेक्टर है, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सा होगा, ये होगा। फिर यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे आने से आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मैक्सिमम मिलेगा, दैट इज -Vm मिलेगा, इज इट। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, -Vm मिलेगा। सो दिस इज योर -Vm। तो यहाँ पे रोटेटिंग वेक्टर घूम के जब यहाँ पे आ जाएगा तो इस पोजीशन में आने से आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मैक्सिमम मिलेगा। फिर ये रोटेटिंग वेक्टर अगर घूम के यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे चला गया, दैट इज एक कंप्लीट साइकिल लगा दिया, इसका मतलब 2π एंगल कवर किया। तो यहाँ पे जब आएगा तो फिर से आपका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया, दैट मींस द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ रोटेटिंग वेक्टर्स, दीज आर कॉल्ड फेजर्स। The instantaneous voltage and current can be represented in terms of rotating vectors. We call them as phasors. इनको हम लोग phasors बोलते हैं, ठीक है। तो आप इस फिगर को ले लीजिए। So ये क्या है, this figure is for voltage waveform. This is for the voltage waveform. voltage waveform है। So यहाँ पे हमारा जो voltage है V changes with ओमेगा टी। ओमेगा टी चेंज होने की वजह से आपका v का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, दैट इज थीटा चेंज होने की वजह से v चेंज हो रहा है। और इसको हम लोग बोलते हैं रोटेटिंग वेक्टर। इस चीज को हम लोग बोलते हैं रोटेटिंग वेक्टर, रोटेटिंग वेक्टर। और रोटेटिंग वेक्टर जो है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फेजर बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं फेजर। तो इसका मतलब ये मेरा क्या है, ये एक वोल्टेज फेजर है। इस वोल्टेज फेजर को अगर मैं 0 से लेके ऐसे घुमाता हूं 260 डिग्री तक, तो मेरा ये वेवफॉर्म मिल जाता है। दैट मींस द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज as well as the instantaneous current can be represented in terms of rotating vectors. In rotating vectors को हम लोग बोलते हैं फेजर। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फेजर बोलते हैं। तो इसके ऊपर में अगर मैं ऐसे एरो डाल रहा हूँ वेक्टर, तो आपको ये नहीं सोचना कि वोल्टेज जो है, वोल्टेज इज नॉट ए वेक्टर। आपको ऐसा नहीं सोचना, वोल्टेज
इज ए वेक्टर, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, ये रोटेटिंग वेक्टर है, दैट्स ऑल, इट इज ए फेजर। सो हम लोग इसको फेजर डायग्राम से नोशन कर रहे हैं, मींस इसको नोटेशन कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वोल्टेज जो है एक वेक्टर क्वांटिटी और करंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे हम लोग वोल्टेज और करंट दोनों का वेवफॉर्म को रोटेटिंग वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, इसीलिए हम लोग बोलेंगे इसको वोल्टेज फेजर एंड करंट फेजर, लेकिन ये बिल्कुल वेक्टर्स नहीं है, ठीक है। सो आप इसको पोज मारिए, जल्दी लिखिए। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर फेजर डायग्राम, सॉरी फेजर्स। व्हाट इज अ फेजर? हो गया। सो नेक्स्ट विल स्टडी द फेजर डायग्राम। आपको एग्जाम में जो आता है दैट इज फेजर डायग्राम आता है। तो फेजर डायग्राम क्या है? फेजर डायग्राम इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन टर्म्स ऑफ देयर फेज एंगल्स। इनका जो फेज एंगल होता है, फेज एंगल क्या होता है अभी आपको शायद नहीं पता है, मैं आपको बता रहा हूँ। फेज एंगल के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग वोल्टेज और करंट को रिप्रेजेंट करते हैं एक डायग्राम के फॉर्म में, तो उस डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं? फेजर डायग्राम बोलते हैं। सो व्हाट इज अ फेजर डायग्राम फॉर? व्हाट इज द फेजर डायग्राम फॉर? AC voltage applied to resistor and AC voltage applied to inductor, AC voltage applied to capacitor, इस चीज को हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। So first we'll study for resistor. Phasor diagram we are studying for resistive circuit. For resistive circuit. The first thing is the instantaneous voltage and current. The instantaneous voltage and current in purely resistive circuit, in purely resistive circuit, the instantaneous voltage and current in purely resistive circuit is given as, what is the instantaneous voltage? Instantaneous voltage is given as V equal to Vm sin omega t, and instantaneous current is given as I is equal to Im sin omega t. तो इसका करंट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है I इक्वल टू करंट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है इंस्टेंटेनियस करंट, अगर मैं बोलता हूँ I, देन इट इज इक्वल टू Im sin ऑफ ओमेगा t प्लस फाई होता है, ओमेगा t प्लस फाई है। व्हाट इज दिस फाई? दिस फाई इज कॉल्ड फेज एंगल। इसको क्या कहा जाता है? फेज एंगल कहा जाता है। तो यहाँ पे ओमेगा टी है, तो इसके साथ अगर मैं जीरो ऐड कर देता हूँ, एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओमेगा टी प्लस जीरो है। तो इसका मतलब यहाँ पे फेज एंगल कितना है? यहाँ पे फेज एंगल फाई, देखिए आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इसका मतलब यहाँ पे फेज एंगल कितना है? यहाँ पे फेज एंगल इज जीरो। सो वी कैन से दैट द फेज एंगल बिटवीन voltage and current is zero. Between voltage and करंट इज जीरो। यहाँ पे वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज एंगल है वो कितना है? जीरो है। फेज एंगल जीरो है, इसका मतलब क्या है? अगर मान लीजिए ये मेरा वोल्टेज वेक्टर है और ये मेरा करंट वेक्टर है, आप इसको वेक्टर बिल्कुल नहीं सोचना, मैं इसको उड़ा देता हूँ वेक्टर को, कोई टेंशन नहीं है। सो ये हमारा करंट फेजर है और ये हमारा वोल्टेज फेजर है। दिस इज द वोल्टेज फेजर, दिस इज द करंट फेजर। ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब इनके बीच में एंगल कितना है? एंगल थीटा जो है 0 डिग्री है। तो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट जो है इन द सेम डायरेक्शन होता है। तो अगर हम लोग ऐसे ले लेते हैं, मान लीजिए वोल्टेज है, इधर क्या होगा? करंट होगा। दैट मींस द वोल्टेज एंड करंट फेजर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, इसलिए आपका थीटा का वैल्यू कितना है? यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे फेज एंगल है। तो फेज एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, फाई का वैल्यू कितना है? 0 है। सो द फेज एंगल बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट for a purely resistive circuit is what? 0। क्यों 0 है? क्योंकि हमें पता है इंस्टेंटेनियस करंट और वोल्टेज का इक्वेशन। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है V इक्वल टू Vm sin ओमेगा t, करंट है I इक्वल टू Im sin ओमेगा t। इसका मतलब इनके बीच में फेज एंगल कितना है? 0 है। नाउ अगर हम लोग फेजर डायग्राम को रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे? ओके, नो इश्यूज। मान लीजिए ये हमारा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वेवफॉर्म है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द वोल्टेज वेवफॉर्म है। दिस इज वोल्टेज वेवफॉर्म। नाउ करंट का वेवफॉर्म क्या होगा? यहाँ पे वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल कितना है? वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल 0 है। इसका मतलब वोल्टेज और करंट जो है सेम पॉइंट से स्टार्ट होगा। तो करंट का वेवफॉर्म को कोई दूसरा कलर ऐड कर सकते हैं?
प्योर एसी वेव दिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया मेरा वोल्टेज वेव फॉर्म, और ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है दिस इज व्हाट, दिस इज आवर करंट वेव फॉर्म। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द करंट वेव फॉर्म, ये हमारा करंट वेव फॉर्म है। यहाँ पे अगर अच्छी तरीके से हम लोग देखेंगे तो वोल्टेज और करंट जो है एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब इनके बीच में फेज एंगल कितना है, 0 है। जहां से वोल्टेज शुरू हुआ है वहां से करंट शुरू हुआ है, इसका मतलब इनके बीच में फेज एंगल कितना है, 0 है। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर एक पर्टिकुलर एंगल में कंसीडर करता हूँ, मान लीजिए कोई एक एंगल है, से दिस एंगल इज ओमेगा t1, ये मेरा कितना होगा 0, ये मेरा कितना है पाई, ये कितना है 2 पाई है। तो ये मेरा एक पर्टिकुलर एंगल है। आपको क्या करना है, फेजर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया वेवफॉर्म रिप्रेजेंटेशन। फेजर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इस लाइन के साथ सीधा एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कीजिए। तो ये एक लाइन हो गया। इसके बाद आपका ये लाइन मींस ये जो एंगल का लाइन है, यहाँ पे जिस पॉइंट पे आपका वोल्टेज वेवफॉर्म को छुआ है वहां से आप एक डॉटेड लाइन को ड्रॉ कीजिए, ऐसे डॉटेड लाइन आपको ड्रॉ करना है। कहाँ पे, जिस पॉइंट से आपका ओमेगा टी एंगल गया है, इस पॉइंट से, और जिस पॉइंट से आपका करंट गया है उस पॉइंट पे भी आपको क्या करना है, ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है। आपको समझ में आ जाएगा, खाली देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से आपका वोल्टेज गया है और यहाँ से आपका करंट वेवफॉर्म है, तो इसका मतलब इस एंगल पे वोल्टेज का वैल्यू कितना है, ये हो गया वोल्टेज का वैल्यू। करंट का फेजर कहाँ पे है, ये हो गया करंट का फेजर। सो दिस इज माय वोल्टेज फेजर, और ये कौन सा फेजर है, करंट फेजर है, इज इट। ये करंट वेवफॉर्म से फेजर लिया है तो इसका मतलब ये करंट फेजर है, और ये वोल्टेज वेवफॉर्म से लिया है, इसका मतलब ये वोल्टेज फेजर है। ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, ये एंगल है ओमेगा t1, वहां पे एंगल कितना है, ओमेगा t1 है, इसीलिए ये एंगल भी कितना होगा, ओमेगा t1 है। नाउ इससे मुझे क्या मिलेगा, ये जो वोल्टेज वेवफॉर्म है इससे मुझे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का मैग्नीट्यूड मिलेगा। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, Vm sin ओमेगा t। तो यहाँ पे एंगल में टाइम मैंने लिया t1, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा t1। इसका मतलब इससे आपको मिलेगा वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का मैग्नीट्यूड। और इंस्टेंटेनियस करंट का मैग्नीट्यूड आपको कहां से मिलेगा, ये वैल्यू देगा आपको इंस्टेंटेनियस करंट मैग्नीट्यूड। ये हो गया इंस्टेंटेनियस करंट मैग्नीट्यूड, ये हो गया इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मैग्नीट्यूड। इंस्टेंटेनियस करंट का मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इट इज Im sin ऑफ ओमेगा t1। सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस करंट मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ से, ये मैंने करंट वेवफॉर्म से लिया है तो ये मुझे देगा इंस्टेंटेनियस करंट मैग्नीट्यूड। ये मैंने वोल्टेज वेवफॉर्म से लिया तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मैग्नीट्यूड। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं वेवफॉर्म रिप्रेजेंटेशन। तो इसको हम लोग, इस फिगर का अगर नाम हम लोग देंगे देन इट इज V and I वेवफॉर्म्स। तो उतना नहीं चाहिए। ये हो गया आपका वोल्टेज एंड करंट वेवफॉर्म्स, वोल्टेज एंड करंट वेवफॉर्म से। तो ये वेवफॉर्म से हमें क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ही मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी। तो इधर आपका क्या है, ओमेगा टी है, और इधर आपका क्या है, इधर आपका वोल्टेज भी है और करंट भी है। तो इससे आपको वोल्टेज का वेवफॉर्म और करंट का वेवफॉर्म दोनों इधर एम्पलीट्यूड दिखा रहे हैं, तो इसीलिए V और I दोनों आएगा, और यहाँ पे एंगल ओमेगा टी है। यहाँ पे आपको रोटेशन ऑफ वेक्टर दिखाना बहुत जरूरी है, मींस यहाँ पे ये रोटेशन क्या है, थोड़ा सेकंड फिगर में आपको समझ में आएगा। ऐसे आपको रोटेशन दिखाना है, ठीक है। ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज दिया है, याद रखना। और ये जो है इस फिगर को हम लोग बोलते हैं, इस फिगर को बोलते हैं फेजर डायग्राम। ये हो गया आपका फेजर डायग्राम। सो दिस इज अ फेजर डायग्राम फॉर प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, ठीक है। तो मैं टाइम ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, आप अच्छी तरीके से समझना, ये एग्जाम में आता है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। अच्छी तरीके से समझना है और ड्रॉ करना है। सो आप लोग पोज मारिए और लिखिए। हो गया। सो सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे फॉर रेसिस्टिव, नहीं है अभी, हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टिव सर्किट। फॉर इंडक्टिव सर्किट में जहां पे खाली इंडक्टर कनेक्टेड है, ठीक है। सो द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट इन प्योरली रेसिस्टिव नहीं होगा, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव
सर्किट इज गिवन बाय V इक्वल टू Vm sin ओमेगा t, I इक्वल टू Im sin ओमेगा t। इंडक्टिव सर्किट के लिए आप याद कीजिए वोल्टेज क्या था, करंट क्या था, I इक्वल टू Im sin ओमेगा t माइनस पाई बाई टू। कितना है, माइनस पाई बाई टू। इसका मतलब वोल्टेज का एंगल क्या है, वोल्टेज का एंगल है ओमेगा टी, करंट का एंगल क्या है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसका मतलब करंट का जो एंगल है वो वोल्टेज से पाई बाई टू पीछे होगा, करंट जो है वोल्टेज से पाई बाई टू पीछे होगा। तो पीछे का मतलब क्या होता है, पीछे का मतलब होता है लैगिंग। आगे का मतलब क्या होता है, मींस कोई अगर मेरे सामने चल रहा है तो उसको मैं बोलूंगा लीडिंग, मेरे कोई पीछे चल रहा है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, लैगिंग। यहाँ पे करंट जो है वोल्टेज के पीछे चलता है, इसीलिए इसको कहा जाता है लैगिंग, लैगिंग कहा जाता है। ठीक है, सो यू कैन से दैट द करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज, द करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय एन एंगल। कितना एंगल से लैग कर रहा है, पीछे कितना एंगल है, पाई बाई टू एंगल पीछे है। सो इसका कोई जरूरत नहीं है। So हम लोग लिख सकते हैं here current lags the voltage, here current lags the voltage by an angle, current lags the voltage by an angle, कितना एंगल से पीछे चल रहा है, पाई बाई टू एंगल पीछे चल रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वेवफॉर्म रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया वेवफॉर्म रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। सो फर्स्ट यू टेक वोल्टेज वेवफॉर्म, पहले आपको वोल्टेज वेवफॉर्म रिप्रेजेंट करना है। सी ये आपका रजिस्टर के जैसे इतना आसान नहीं है, थोड़ा थोड़ा तो है ये। पहले आपको क्या करना है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वेवफॉर्म ड्रॉ करना है। तो ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वेवफॉर्म। ठीक है, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वेवफॉर्म। नाउ इंस्टेंटेनियस करंट जो है, इंस्टेंटेनियस करंट क्या है, I इक्वल टू Im sin ओमेगा t माइनस पाई बाई टू है। इसका मतलब अगर मैं ये एंगल को बोलता हूँ पाई बाई टू, ये एंगल कितना है, ये एंगल पाई बाई टू है, ये कितना है, पाई है। ये यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू है, पाई 90, हाँ। सो यहाँ पे कितना मिलेगा, 2 पाई है, सो दिस इज 2 पाई है, और ये एंगल कितना है, दिस इज 0 है। ठीक है, यहाँ पे करंट जो है लैग करता है। करंट लैग का मतलब क्या है, करंट वोल्टेज के पीछे आता है, करंट जो है वोल्टेज के पीछे आता है। तो मेरा वोल्टेज कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से, तो करंट कहाँ से शुरू होगा, इसके पीछे से शुरू होगा। पीछे का मतलब हम लोग जो पीछे सोचते हैं ऐसा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पीछे का मतलब वोल्टेज ऑलरेडी शुरू हो गया, उसके बाद जाके करंट बनेगा। तो करंट कहां से बनेगा, यहां से बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पे करंट का वेवफॉर्म रिप्रेजेंट करता हूं, मान लीजिए ये हो गया हमारा करंट का वेवफॉर्म। बोर्ड में तो बताना बहुत मुश्किल है यार। है कि नहीं है? तो वोल्टेज कहां से शुरू हुआ, यहां से। तो करंट क्या होगा, इसके पाई बाई टू एंगल पीछे से शुरू होगा। यहां से वोल्टेज शुरू हो गया तो करंट यहां से शुरू होगा, पाई बाई टू पीछे से करंट बनेगा। तो ये क्या है, ये हो गया मेरा वोल्टेज वेवफॉर्म, दिस इज द वोल्टेज वेवफॉर्म। और ये क्या है, ये मेरा करंट वेवफॉर्म है। ये दोनों वेवफॉर्म हमें क्या देता है, ये दोनों हमें इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट देता है। सो दिस इज वोल्टेज वेवफॉर्म, दिस इज करंट वेवफॉर्म। अब ये जो मेरा करंट वेवफॉर्म है, ये एक्चुअली कहाँ से शुरू हुआ है, हम लोग यहाँ से अगर देखेंगे तो ये एक्चुअली ऐसे शुरू हुआ है। देखो अच्छी तरीके से, ठीक है, इसमें टाइम लगेगा, नो इश्यूज, सीखना है आपको। एक्चुअली मेरा करंट वेवफॉर्म कंटिन्यूअस है ना, करंट वेवफॉर्म ऐसा कंटिन्यूअस है, तो वोल्टेज वेवफॉर्म भी ऐसे ही कंटिन्यूअस है। अगर वोल्टेज वेवफॉर्म ऐसा बोलेंगे तो इसका मतलब वोल्टेज वेवफॉर्म ऐसा कंटिन्यूअस है। तो करंट वेवफॉर्म ऐसा अगर कंटिन्यूअस है तो ये कंटिन्यूअस वेव हो गया। तो यहाँ से अगर मैं इसको ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इस पार्ट को मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, इसको मुझे नहीं चाहिए। मैं कहाँ से शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से। तो यहाँ से मेरा करंट वेवफॉर्म है, देखने से पाई बाई टू पीछे है, वोल्टेज यहाँ से शुरू हुआ, करंट यहाँ से शुरू हुआ, तो ये पाई बाई टू पीछे है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज 3 पाई बाई टू,
ये तो आपको पाई बाई 2 है। नाउ आपको क्या चाहिए, फेजर डायग्राम चाहिए। फेजर डायग्राम के लिए आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर यहाँ पे एंगल कंसीडर करना है। एज्यूम यहाँ पे कोई एक एंगल है, सो दिस इज एन एंगल। तो ये एंगल को मान लेता हूं मैं ओमेगा T1, सो दिस इज एन एंगल ओमेगा T1। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसके सीधा, तो ये एक लाइन हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हो गया और एक लाइन, क्योंकि हमें फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। इसके बाद ये एंगल का वोल्टेज कहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे, तो यहाँ से आपको क्या करना है, डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है। तो उससे आपको क्या मिलेगा, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो ये हो गया वोल्टेज का लाइन। और करंट कहाँ पे टच किया है, यहाँ पे। तो यहाँ से आपको क्या करना है, फिर से ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, करंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, वोल्टेज मैग्नीट्यूड। इसका मतलब अगर मैं बोलता हूँ ये मेरा वोल्टेज फेजर है, ये क्या है, वोल्टेज फेजर है। वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल कितना है, पाई बाई 2 है। इसका मतलब एग्जैक्टली पाई बाई 2 एंगल पीछे करंट होगा। तो ये अगर वोल्टेज वेवफॉर्म है तो ये क्या होगा, करंट फेजर है। दिस इज वोल्टेज फेजर, दिस इज करंट फेजर। वोल्टेज फेजर और करंट फेजर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। रोटेशन ऐसा है, इसका मतलब वोल्टेज किधर जा रहा है, आगे जा रहा है, करंट जो है पीछे जाएगा। ऐसा देखो, वोल्टेज आगे आगे जाएगा, करंट पीछे पीछे जाएगा। वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल कितना है, वोल्टेज और करंट के पीछे एंगल जो है 90 डिग्री है। दैट इज कितना एंगल है, पाई बाई 2 एंगल पीछे चल रहा है। करंट जो है वोल्टेज से पाई बाई 2 एंगल पीछे चलेगा। और ये एंगल कितना है, वोल्टेज का एंगल कितना है, वोल्टेज का एंगल है ओमेगा T1, क्योंकि हमने यहाँ पे एंगल कितना लिया है, ओमेगा T1 है। अब हमें क्या चाहिए, वोल्टेज फेजर का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ये हो गया मेरा वोल्टेज फेजर। वोल्टेज फेजर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वोल्टेज फेजर का मैग्नीट्यूड होता है Vm sin ऑफ ओमेगा T1। सो दिस इज द वोल्टेज फेजर मैग्नीट्यूड। करंट फेजर का मैग्नीट्यूड मुझे कहाँ से मिलेगा, करंट का फेजर से मिलेगा। तो ये देगा मुझे करंट फेजर का मैग्नीट्यूड। ये मुझे क्या देगा, करंट फेजर का मैग्नीट्यूड। करंट फेजर का मैग्नीट्यूड क्या है, आई एम साइन ऑफ ओमेगा T1 माइनस पाई बाई 2। आई एम साइन ऑफ ओमेगा T1 माइनस पाई बाई 2। सो दिस विल गिव अस द करंट फेजर मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द वोल्टेज फेजर मैग्नीट्यूड। ठीक है, सो ये हो गया आपका फेजर डायग्राम। दिस इज आवर फेजर डायग्राम। और ये हमारा क्या है, वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज द वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। वेव फॉर्म से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये फेजर डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर, आप लोग पोज मारिए और जल्दी लिखिए। तो इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फेजर डायग्राम पढ़ेंगे। फेजर डायग्राम मींस फर्स्ट वी हैव स्टडीड फॉर रेजिस्टिव सर्किट, नाउ इट इज फॉर इंडक्टिव सर्किट, और एक सर्किट बचा हुआ है दैट इज फॉर कैपेसिटिव सर्किट। तो तीनों पढ़ लिए, इट इज ओवर। हो गया। Now we'll study the third phasor diagram, and it is for capacitive circuit. The third one is for capacitive circuit. For capacitive circuit, the instantaneous voltage and current in purely capacitive circuit. In purely capacitive circuit is given as V equal to Vm sin omega t, I equal to Im sin omega t plus pi by 2 है। आप लोगों ने पढ़ा है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट इक्वेशन। तो करंट का इक्वेशन क्या होता है, Im sin omega t plus pi by 2 है। सो यहाँ पे करंट जो है आगे है, करंट आगे है, इसका मतलब क्या है, पीछे का मतलब लैग है, आगे का मतलब लीड है, एक ही साथ है। इसका मतलब क्या है, इन फेज है। जब करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल जीरो होता है तब हम लोग बोलते हैं द वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। जब करंट पीछे होता है तब हम लोग क्या बोलते हैं, द करंट इज लैगिंग द वोल्टेज। जब करंट आगे होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, द करंट इज लीडिंग द वोल्टेज। यहाँ पे वोल्टेज का वेवफॉर्म क्या है, V इक्वल टू Vm sin ओमेगा t, और करंट का वेवफॉर्म क्या है, I इक्वल टू Im sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा करंट जो है वो पाई बाई 2 एंगल आगे आगे चलेगा। इसका मतलब वी कैन से दैट हियर करंट लीड्स द वोल्टेज, करंट leads the voltage, here current leads the voltage by an angle
π/2। यहाँ पे करंट जो है π/2 एंगल आगे आगे चलेगा, लीड करेगा। और पहला वाला केस में क्या था, लैग कर रहा था, पीछे चल रहा था। सो इफ यू ड्रॉ द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट वेवफॉर्म, कैसे रिप्रेजेंट करना है, पहले आपको वेवफॉर्म बनाना है वोल्टेज और करंट का, और फिर वोल्टेज और करंट का वेवफॉर्म में से कोई एक एंगल सिलेक्ट करना है। उस पर्टिकुलर एंगल से आपको क्या करना है, वोल्टेज और करंट का फेजर को निकालना है। तो पहले आपको क्या करना है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वेवफॉर्म ड्रॉ करना है। से ये हमारा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वेवफॉर्म है, ठीक है। से ये हमारा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वेवफॉर्म है। अब हमें क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस करंट वेवफॉर्म चाहिए। इसके लिए हमें पहले पता होना पड़ेगा ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज π/2। यहाँ पे जो एंगल होगा ये एंगल कौन सा है, दिस इज द 3π/2 एंगल है। ये कितना है, ये पाई है, और ये कितना है 2π है, और ये कितना है, ये 0 है, ठीक है। हमारा यहाँ पे करंट जो है लीड्स द वोल्टेज है, करंट लीड्स द वोल्टेज, इसका मतलब करंट वोल्टेज से आगे चलेगा। करंट आगे चलेगा इसका मतलब क्या है, अगर ये यहां से लेके यहां तक π/2 है तो यहां तक भी π/2 होगा, तो ये क्या होगा -π/2। तो मेरा वोल्टेज कहां से शुरू हो रहा है, वोल्टेज यहां से शुरू होके जा रहा है, तो करंट कहां से शुरू हो जाएगा, यही से शुरू हो जाएगा करंट, है कि नहीं है। पहले वाला केस में क्या था, वोल्टेज यहां से था तो करंट बाद में आ रहा था। यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज यहां से शुरू हो रहा है तो करंट इससे पहले से आ जाएगा। तो करंट का साइकिल को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो करंट का साइकिल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे, ये हो गया करंट का साइकिल, ये हाफ साइकिल हो गया। बहुत मुसीबत है। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा करंट वेवफॉर्म, और ये हो गया हमारा वोल्टेज वेवफॉर्म, और ये हो गया हमारा करंट वेवफॉर्म, ऐसे जाता रहेगा। तो इस पार्ट को हम लोग निकाल देंगे क्योंकि हमें लेफ्ट पार्ट नहीं चाहिए, ठीक है। आपको समझ में आ गया करंट और वोल्टेज कैसे ड्रॉ करना है। तो ये क्या है, ये एंगल जो है दिस इज π/2 है, ये एंगल कितना है 3π/2 है, और ये आपका 2π है, दिस इज योर पाई है। व्हाट इज दिस, दिस इज द वोल्टेज वेवफॉर्म, ये है वोल्टेज वेवफॉर्म, और ये क्या है करंट वेवफॉर्म कहाँ है, ये पे लिख लेते हैं, ये हमारा करंट वेवफॉर्म है, क्लियरली दिख रहा है करंट वेवफॉर्म है, दिस इज आवर करंट वेवफॉर्म। नाउ हमें क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर एंगल सिलेक्ट करना है, सो विल सिलेक्ट एन एंगल। चलो यहाँ पे एंगल सिलेक्ट करते हैं, से दिस इज एन एंगल, और ये जो एंगल है से दिस एंगल इज ωt1 है, सेम मेथड है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, वोल्टेज मैग्नीट्यूड मिलेगा, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, करंट का मैग्नीट्यूड मिलेगा, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, इस लाइन के सीधा एक लाइन ड्रॉ करना है, तो ये एक सीधा लाइन हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, और एक लाइन ड्रॉ करना है, इसके परपेंडिकुलर ये हो गया। इसके बाद आपको इस वोल्टेज वेवफॉर्म से लाइन खींचना है, तो सॉरी ये अभी इसका वोल्टेज नहीं है, ये क्या है करंट वेवफॉर्म है, तो करंट वेवफॉर्म से एक लाइन खींचना है। से मैंने एक लाइन खींचा, कहां से, करंट से। करंट को थोड़ा ऊपर कर देते, नहीं दिख रहा है, से करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट से मैंने सीधा लाइन ड्रॉ किया, तो यहाँ से मुझे करंट का फेजर मिलेगा क्योंकि ये करंट का वेवफॉर्म है। और यहाँ से अगर एक मैं लाइन खींचता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, वोल्टेज फेजर मिलेगा। तो यहाँ से मैं एक लाइन खींचता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, वोल्टेज फेजर, श्योर। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि ये वोल्टेज वेवफॉर्म है तो यहाँ से मुझे मिलेगा वोल्टेज फेजर, ये करंट वेवफॉर्म है तो यहाँ से मुझे मिलेगा करंट फेजर, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे करंट जो है वोल्टेज से आगे होता है। से अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज को ले लेता हूँ, ये हमारा क्या देगा, ये हो गया वोल्टेज फेजर। व्हाट इज दिस, दिस इज द वोल्टेज फेजर, ये मेरा वोल्टेज फेजर है। अब करंट फेजर वोल्टेज फेजर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बाद में मैं आपको एंगल दिखा रहा हूँ, ये हो गया मेरा करंट, तो इसको मैं बोलूंगा करंट फेजर। रोटेशन कैसा है, ऐसा है, इसका मतलब करंट आगे आगे जाएगा, ये देखो आगे आगे जाएगा, वोल्टेज पीछे पीछे जाएगा।
करंट जो है आगे आगे जाएगा, वोल्टेज जो है पीछे पीछे जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, द करंट इज लीडिंग द वोल्टेज, द करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ π/2। इनके बीच में एंगल कितना है, इनके बीच में एंगल जो है π/2 है। वोल्टेज और करंट फेजर के बीच में एंगल कितना है, π/2 है। अब ये जो एंगल है, ये एंगल क्या है, ये एंगल को हम लोग बोल सकते हैं ओमेगा t1। और ये जो वोल्टेज फेजर है इसका मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ से निकालेंगे, और ये जो करंट फेजर है, सॉरी ये करंट का फेजर का मैग्नीट्यूड देगा, और ये क्या देगा, ये देगा हमें वोल्टेज फेजर का मैग्नीट्यूड। ये क्या है, करंट से है, तो ये करंट फेजर का मैग्नीट्यूड देगा। करंट फेजर का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे लिखते हैं, Im sin ऑफ ओमेगा t1 प्लस π/2 है। और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, वोल्टेज फेजर का मैग्नीट्यूड मिलेगा। वोल्टेज फेजर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, Vm sin ऑफ ओमेगा t1। ठीक है, तो ये वोल्टेज से है तो मुझे वोल्टेज फेजर का मैग्नीट्यूड मिलेगा, ये करंट से है तो मुझे करंट फेजर का मैग्नीट्यूड मिलेगा। ये हो गया मेरा रोटेशन ऑफ फेजर। ठीक है, सो व्हाट इज दिस, दिस इज द फेजर डायग्राम। ये फेजर डायग्राम है, और ये क्या है, वेवफॉर्म रिप्रेजेंटेशन है। इट इज द वेवफॉर्म ऑफ V and I। V and I का मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट। V and I with respect to ओमेगा t, मींस ओमेगा t को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो वोल्टेज और करंट का मैग्नीट्यूड कितना मिलता है। सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वोल्टेज और करंट है, और इधर क्या है, इधर आपका ओमेगा t है, दैट इज एंगल है। और कुछ चाहिए, नहीं चाहिए। तो इसके साथ हमारा ये क्लास का कंटेंट यहाँ पे खत्म होता है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, फेजर डायग्राम पढ़ा है। फेजर डायग्राम से पहले हमने पढ़ा है फेजर्स। फेजर्स क्या होता है, फेजर्स आर द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ रोटेटिंग वेक्टर्स, वी कॉल देम एज फेजर्स। जो इंस्टेंटेनियस करंट होता है और वोल्टेज होता है, इनका जो वेवफॉर्म है, इनको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं रोटेटिंग फेजर से, रोटेटिंग वेक्टर से, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फेजर्स। ना फेजर डायग्राम के अंदर क्या आता है, वोल्टेज फेजर, करंट फेजर और इनके बीच में जो फेज एंगल है, इन तीनों चीजों का रिलेशनशिप को दिखाने के लिए एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो ये मेरा मान लीजिए वोल्टेज है और इधर करंट है। से दिस इज वोल्टेज, दिस इज करंट। यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा इज 0 डिग्री है। आपको बोलना है, ये मान लीजिए आपका वोल्टेज फेजर है, और वेक्टर उड़ा दीजिए, वेक्टर से थोड़ा डाउट हो गया यहाँ पे। ये मान लीजिए करंट है, इनके बीच में एंगल कितना है, एंगल इज π/2 है। ये मेरा सेकंड फिगर है। थर्ड फिगर में मैं ऐसे लेता हूँ, ये मान लीजिए मेरा वोल्टेज है, और ये मान लीजिए मेरा करंट है, ये मेरा करंट है। इनके बीच में एंगल कितना है, एंगल जो है π/2 है। तो ये थीटा जो है कितना है, थीटा इज 0 डिग्री है। यहाँ पे अगर मैं रोटेशन ऑफ वेक्टर बोलूं ऐसा, तो वोल्टेज और करंट जो है एक ही डायरेक्शन में, इसका मतलब दे विल मूव इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पे क्या है, रोटेशन ऑफ वेक्टर ऐसा लेने से, तो वोल्टेज क्या है, वोल्टेज आगे है और करंट जो है पीछे है। इसका मतलब ये क्या है, ये लैग है, और ये क्या है, लीड है, और ये क्या है, इन फेज है। तो पहले वाला केस किसके लिए है, इन फेज का मतलब इट इज फॉर रेसिस्टर। ये क्या है, लैग हो रहा है, इसका मतलब ये किसके लिए, इंडक्टर के लिए। यहाँ पे लीड हो रहा है, इसका मतलब ये किसके लिए है, कैपेसिटर के लिए। ठीक है, तो हमेशा याद रखना रोटेशन ऑफ वेक्टर ऐसा है। तो इसको मैं गोल करके रख दे रहा हूँ, आपको हमेशा याद रहने के लिए। वोल्टेज और करंट जो है इंक्रीज होता है किसके लिए, रेजिस्टर के लिए। वोल्टेज और करंट जो है लैग करता है किसके लिए, इंडक्टर के लिए। और करंट जो है लीड करता है किसके लिए, कैपेसिटर के लिए। ठीक है, तो आप अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, इट इज फॉर R, दिस इज फॉर L एंड दिस इज फॉर C, कैपेसिटर के लिए। ठीक है, और कुछ चाहिए, इन शॉर्ट हो गया। तो इसके साथ हमारा क्लास यहाँ पे खत्म होता है, और इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स, और एंड देन विल स्टडी द LCR सर्किट। ठीक है, टिल देन आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, अच्छी तरीके से देखिए। ठीक है, और सब लोग मिलके मेरे लिए दुआ कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, थैंक यू, बाय बाय।